Dear students, today we will discuss a new question of current. State Ohm's law and establish it on the basis of free electron model. Ohm's law is known by you already in previous classes. You study about it. What is Ohm's law? If the physical condition of a conductor do not change, if the physical condition of a conductor do not change, then ratio of potential difference applied across it ends to the current flowing in it is a constant, which is called resistance of conductor. Is that V upon I is equal to a constant, implies that V upon I is equal to R. What says Ohm's law? What says Ohm's? Ohms says if the physical condition of a conductor do not change, the ratio of potential difference applied across its end to the current flowing in it is a constant, which is called resistance of conductor. Is that V upon I is a constant, implies that V upon I is equal to R, where V is potential difference and I is current, and constant is called resistance of given conductor. According to Ohm's law, if physical condition, what do you know about physical condition? Physical condition contains 3 points. First, length of conductive wire, area of cross section of conductive wire, and third, temperature. If three things of conductive wire is not changed, if we keep constant temperature of conductive wire, if we keep constant temperature of conductive wire and do not change length or do not bend the conductive wire. Third, if we do not stretch conductive wire, then its area of cross section is not changed. So first condition, if we do not change the physical condition of conductive wire, one thing. Second, the applied potential difference across conductive wire upon flowing current into the conductive wire is always equal to a constant. Is always equal to a constant. It means if physical condition of conductive wire do not change, then ratio of potential difference applied across the conductive wire and current flowing in it is always equal to a constant, and this constant is known as a resistance of conductive wire. ओम्स कहते हैं कि यदि किसी कंडक्टिव वायर की फिजिकल कंडीशन अर्थात उसके टेम्परेचर, उसकी लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छेड़ा ना जाए, किसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में या उसे स्थिर रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी तार के कंडक्टिव वायर के दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो सदैव उसमें फ्लोइंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यदि V पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टिव वायर के अक्रॉस
अप्लाई किया गया है और इसके कारण उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। अर्थात यदि हम V को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, if we increase V, then I is also increase in a particular proportion। यदि हम V को इंक्रीज करते हैं तो I भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V को यदि डिक्रीज करते हैं तो I भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा। अर्थात बिना फिजिकल कंडीशन को चेंज किए हुए हम यदि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट I की वैल्यू मेजर करते हैं और उन दोनों के बीच एक ग्राफ खींच लें, तो ऐसी कंडीशन में जो ओमिक कंडक्टर है, ओमिक रेजिस्टेंस है, उस ओमिक रेजिस्टेंस में हम जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से होकर जाएगी। ओरिजिन से होकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ये शो करती है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। Since proportion of V and I is a constant, so this constant is known as resistance। अर्थात यदि रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए या इक्वल कर दिया जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में V शुड बी इक्वल टू I। रेजिस्टेंस क्या है, करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की जाती हैं, जो कोलाइडिंग होती है, उसके कारण जो एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस करंट में डेवलप नहीं हो पाता। तो V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। जितना V दोगे उसी की रेशो में आपको I मिलेगा। ये था ओम्स लॉ। अब इसको हमें डिड्यूस करना है। क्वेश्चन सेज डिड्यूस ओम्स लॉ और प्रूव ओम्स लॉ by the free electron model। Question ahead, it says prove Ohm's law or deduce Ohm's law by free electron model। मतलब या तो हम प्रूव करें कि V upon I should be a constant by the free electron model, और सेकेंड थिंग कि या ये डिड्यूस करें कि V upon I से कांस्टेंट ओम्स लॉ कैसे आया है। तो दो तरह से क्वेश्चन कह सकता है कि प्रूफ V upon I इज ए कांस्टेंट इफ फिजिकल कंडीशन इज नॉट चेंज। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यही कि डिड्यूस ओम्स लॉ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल तो हमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाना है। तो ये पूरा का पूरी थ्योरी एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंसीडर a conductive wire of length L and area of cross section A। Now we consider to deduce Ohm's law by electron free electron model, we consider a conductive wire of length L and area of cross section A। It contains n free electrons on per unit volume। Consider again, let n free electrons are found into per unit volume of given conductor। तो ये दो चीजें having पर let I be the current due to applied potential difference V across both ends of the conductor। यहाँ पर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं और चूंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से शो करना है ओम्स लॉ, तो V और I के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो V I का जिक्र तो होगा ही कि कंडक्टर में करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में फिजिकल कंडीशन भी आएगी। फिजिकल कंडीशन के लिए कौन कौन सी चीजें, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर, जो किसको प्रभावित करता है, जो किसको अफेक्टेड करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट वी कंसीडर ए conductive wire of length L and area of cross section A। this area यदि हम परपेंडिकुलर कट कर दें तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो ले कंसीडर a conductive wire of length L and area of cross section E. It contains n free electrons. It contains n free electrons into per unit volume. इसके पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है. If current I, now consider, if current I flows due to applied potential difference V across given conductive wire, then intensity of electric field due to applied potential, when we applied potential difference across the conductive wire, when we apply potential difference across the conductive wire, then a electric field is established. Then an electric field is established inside the conductive wire, and its value per unit length. So intensity of electric field E is equal to V upon L. Again, when electric field is established or electric field set up inside the, when electric field set up inside the conductive wire, then free electrons of conductive wires experiences a force opposite side the applied electric field. जैसे ही हम कंडक्टिव वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के माने अप्लाई करते ही कंडक्टिव वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल की ओर होगा. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज, व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, then it experiences a force, and force F is equal to Q into electric field, intensity of electric field. Intensity of electric field is represented by capital E, and we know that if charge on each electron is represented by small e, since we know that the charge on each electron of any element is same, and it is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and it is now it is represented by small e. So each when electric field is established inside the conductive wire, then free electron present inside the conductor experiences a force in the opposite direction of electric field, and this force will be equal to F is equal to minus E into E. Since E is equal to V upon L, then we can say this F will be equal to minus E into V upon L. When force is applied on any particle, since charge lies on any particle, charge particle is electron carrier of, since electron is the carrier of charge and it is also a particle, it has a mass. Since it has a mass, and when any force is applied on any particle or on any mass, then it accelerates that particle. जैसे ही हम फोर्स को किसी मास पार्ट माने पर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज कैरियर है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसका एक पर्टिकुलर मास है, इसलिए चार्ज एक मास पर है, मास चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब फोर्स उस पर लग रहा है तो ये एक्सीलरेट करेगा, अप्लाइड फोर्स उस पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगा। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स F इज रिप्रेजेंटेड बाय E, then we can say A is equal to F upon M। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ F, we get A is equal to minus EV upon LM। When these electrons are accelerate, when these free electrons are accelerate, then they move ahead, they move in the opposite direction of electric field. They drift in the opposite direction of electric field due to thermal vibration and applied acceleration. But electrons not moving in the free path, they moves between the gap of molecules and atoms, atomic distance और molecules के जो gap होते हैं उनके बीच में, and when they pass near the any positive ions, then they are attracted or they are collapse. When electron accelerated and move inside the gaps in the conductor, inside the gaps in the into the conductor, then they collapse or they collide with positive ions. All electrons when accelerated or when they move, they collides with positive ions। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गैप में मूव करता है तो वो अट्रैक्शन के कारण जैसे ही पॉजिटिव आयंस के लेयर से होकर गुजरता है तो रिबिल्ड हो जाता है और फिर थर्मल एजिटेशन के कारण उससे बाहर हो जाता है और एक्सीलरेशन फोर्स अप्लाइड फिर एक्सीलरेट होता है, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है। फिर जैसे ही कोलैप्स होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जीरो होने पर थर्मल वाइब्रेशन से रिबिल्ड हुआ कोलैप्स हुआ, या रिबिल्ड हुआ कोलैप्स हुआ या रिबिल्ड हुआ, और रिबिल्ड होकर फिर थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल वाइब्रेशन के कारण बाहर आया और फिर वो एक्सेलरेट होने के बाद क्या होना शुरू हुआ, एक्सेलरेट हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई और जैसे ही फाइनल वेलोसिटी पे पर्टिकुलर वेलोसिटी पे पहुंचा वो किसी पॉजिटिव आयन से आके फिर टकरा गया। तो उसकी जैसे ही टकराएगा कोलैप्स होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई पॉजिटिव आयंस को। तो इनका एक्सेलरेट होना, कोलैप्स होना, अर्थात जीरो वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचना और v से जीरो तक पहुंचना। तो यदि हम मान लें कि फाइनल वेलोसिटी गेन बाय एनी फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सीलरेशन इज represented by v, small v, then v is equal to a into tau, where tau is the average time period of free electrons between two consecutive collision to relaxation. It is called relaxation time, since we know that when electron is accelerated and when electron moves under the influence of thermal vibration, then it collides or it collapses with positive ions, and this process is going on continue. It means each electrons accelerate and collapse after a particular time, after a speed. If we suppose a average time of collapsing between two collapsing is tau, यदि हम मान लें, चूंकि हम जान रहे हैं अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये चलते हुए
इनके पास फ्री पाथ नहीं है, ये चलते हुए क्या होते हैं, जैसे ही पॉजिटिव आयंस के पास से निकलते हैं ये क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं या कोलाइड होते हैं। तो ये इनका वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर ये जैसे ही रिबिल्ड होते हैं थर्मल वाइब्रेशन के कारण फिर से बाहर आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और फिर एक्सीलरेट होने लगते हैं। तो ये एक्सीलरेट होकर फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचे, फिर टकरा गए, फिर 0 हो गए। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलैप्सिंग या 2 लगातार टक्करों के बीच का, यदि हम मान लें कि औसत 2 लगातार टक्कर या 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलैप्सिंग के बीच का टाइम इंटरवल टाउ है। इलेक्ट्रॉनों के किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनों का इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलैप्सिंग का टाइम इंटरवल टाउ है, अर्थात 2 लगातार टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ है। इसका मतलब है कि एक टक्कर हुई उसके बाद दोबारा किसी भी इलेक्ट्रॉन को टकराने के लिए कितना टाइम मिलता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट होने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, टाउ टाइम मिल रहा है। टाउ इज द टाइम, इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जिस समय इलेक्ट्रॉन रिलैक्स्ड है वो कहीं से कोलैप्स नहीं कर रहा, कोलैप्सिंग के बाद और कोलैप्सिंग के पहले, बिफोर कोलैप्सिंग एंड आफ्टर कोलैप्सिंग, बिटवीन 2 consecutive colliding, between 2 consecutive collapsing का टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल यदि टाउ ले लिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू टाउ, मीन्स टाउ टाइम इंटरवल है, रिलैक्सेशन टाइम जो है उतने में ही एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मैंने माना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 टक्करों, लगातार टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, एवरेज टाइम इंटरवल है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो टाउ हो तो फाइनल वेलोसिटी इसी टाइम इंटरवल में मिलेगी और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू टाउ। अब हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी किसमें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि उसके किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो उसके कारण, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो मूव करता है कंडक्टर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि टाइम इंटरवल कितना है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ, जिसमें कि फाइनल वेलोसिटी v होती है और बिफोर वेलोसिटी इसकी कोलैप्सिंग के कारण 0, जैसे ही कोलैप्स किया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो गई और जैसे ही वो उससे फ्री हुआ उसको फिर से एक्सीलरेशन मिलने लगा और एक्सीलरेशन कितने टाइम तक मिला, टाउ टाइम तक, रिलैक्सेशन टाइम तक। और रिलैक्सेशन टाइम टाउ में ड्यू टू एक्सीलरेशन वो फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचा और फिर कोलैप्स हुआ, 0 हो गया। तो इनिशियल, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। नाउ वी गेट -1/2 ev अपॉन lm। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v का मान रख दिया 4, 3 और 4 की सहायता से। तो a की वैल्यू कितनी है, -em अपॉन ev अपॉन lm, माइनस ev अपॉन lm, a की वैल्यू है इंटू टाउ, फाइनल वेलोसिटी v ये होगी। तो vd क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी -1/2 वैल्यू ऑफ a माइनस ev अपॉन lm इंटू टाउ। तो ये हमें मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन चार्जेस पास अक्रॉस द वायर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वायर को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं, 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स को कितने वायर, कंडक्टिव वायर को क्या करेंगे, वायर पर सेकेंड। अगेन चार्जेस पास अक्रॉस द वायर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा कंडक्टिव वायर से, 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं करंट आई। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है, तो n इंटू ए,
एन इंटू ए इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना ई, और किस वेलोसिटी से चल रहा है वी डी। या हमने इसके पहले हमने प्रूव किया है कि आई इज इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। इन प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट current I is equal to relation between current and drift velocity. We know that I is equal to NAE into VD. Now substitute value of VD. We get I is equal to NA into E minus half EV upon Lm into tau. Simplify it, we get I equal to minus 1 upon 2 N A E into E square tau upon Lm into V. We want to find out relation between V upon I, V and I. So now we get V upon I by cross multiplication. V upon I is equal to 2Lm minus 2Lm Na square Na E square tau. V upon I. Now V upon I should be a constant according to Ohm's law. According to Ohm's law, V upon I should be a constant. Now consider length. Length of wire is fixed because physical condition of conductive wire cannot be changed. Since physical condition of conductive wire cannot be changed, so L is fixed and A is also fixed. L and A is fixed, it means it both are a constant quantity. Similarly, mass of electron, M represent mass of electron, it is also a constant. Number of electrons, N is the number of electrons in per unit volume, it can also be not changed. Again, E square is charge on each electron, it is also a constant. And if temperature is not changed, then tau will be also a constant. So 2Lm NaE square tau will be constant. So we get V upon I is equal to constant. Hence यदि प्रूव करने बोलता है तो hence Ohm's law is proved. Hence Ohm's law is proved. और नहीं तो इसी के आगे V upon I is equal to constant is equal to R. It is Ohm's law. So we get value of R is equal to 2Lm and AE square tau, where R is called resistance. Resistance of any conductor is the obstructions in the path of current. किसी भी कंडक्टर के में फ्लोइंग करंट के पाथ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयां या प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. जो रेजिस्ट करता है, जो विरोध करता है, दे ऑफर ऑब्स्ट्रक्शंस. जो ऑफर करता है ऑब्स्ट्रक्शंस, तो रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टिव वायर के अंदर करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने को, ऑब्स्ट्रक्शंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके बाद रेजिस्टेंस पे एक नया न्यू क्वेश्चन लेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.